Hello, welcome back to our channel Pharmaceutical Research and Development or Pharmaceutical Development and Research. So, uh, as you know, I've already posted three lectures online, and in the last lectures, what we have studied just the basic things, or not even the basic thing. We have just gone through a structure of pharmaceutical R&D. So yesterday I told you that I might cover up the department in more details, or I will start with something new. So after giving a due thought or due diligence, I thought that we should move ahead, and the role of the different department coming, or whatever the role of the department, we will discuss as and when the function of that organization is coming to us. So I thought, now let us start with the actual research and development or formulation development. So basically, when we say formulation development, I have yesterday I have shown you the division in the pharmaceutical or the formulation development department, how the departments are distributed, and how the department are distributed based on the market and based on the dosage forms that we have discussed. Now coming to the research or formulation development activity in India, since we are Indians, first we should do what? First we should try to understand what type of work is going on in Indian and R&Ds or Indian F&Ds. What exactly we are doing? So as I told you yesterday, there are basically different type of work going on in formulation development. One is the NCE, that is the new chemical entity, which is a very long process. But if you look at it, in very few companies in India are investing in NCE, because basically it is a very long lasting process, taking 15 to 20 years for the molecule to enter the industry, and it requires lot of patience and lot of money. So NCE, very few Indian companies are doing. So what are the Indian companies doing then? So majority of the Indian companies, first of all, they are working for domestic development. So when they work for domestic development, whatever the molecules are available and all, the formulation department will formulate it into a dosage form. That is what is being done in the domestic market. So this domestic market, I would prefer to discuss it at a later time point. Reason being, again, the focus of the companies, because right now Indian companies are more interested in the other markets rather than domestic market. It doesn't mean, or it is not to belittle the domestic market. A lot of work is being done in domestic market also, but thing is that what I feel, that if we learn the other market, domestic market will come on its own, because domestic market is a combination of each and everything from the other market. That is one of the reason. Second thing is that in domestic market, whatever work we are doing, it is meant to be distributed in domestic market. And when we work on domestic market, so domestic market formulation development is something very similar or more or less similar to what the MPharm students are doing as a part of their project work. They are developing the formulation, and that formulation, whatever is developed, that is the similar work which is being done in the domestic market. Of course, in college or in your thesis, one does not follow any guidelines and all, but again, there are guidelines available for the domestic market also. So domestic market, first we will complete with the other markets, and once we complete with the other market, we will come back to the domestic market, or maybe we will discuss it parallelly also. So NCE is over, now domestic market. So now the major work which is being done in India is basically the generic formulation and development market. So when I say generic formulation development market, it is more or less related for the US market, Europe market,
and the ROW market and other countries market, as I told you yesterday. So whenever we develop a product for any US country or Europe country or UK or Brazil market and all, if we develop the product for them, it is mostly a generic formulation development. So what exactly is generic formulation development? So as I told you yesterday, generic FND. So what is exactly a generic formulation and development? So generic formulation and development is the development of the project for the market wherein already that molecule is available by the innovator. And what is the innovator? Innovator is the person or the organization which has done the NCE, which has developed the molecule and formulated into a dosage form, and it has brought it into the market. So that organization becomes the innovator for that market. And after doing 20 long runs, 15 to 20 long years of research, the molecule sees the day of the light and it comes into the US market. So once that comes into the US market, innovator is the brand leader, or innovator is the one who is getting the complete market. So what we do in this case, when the innovator is already available and the market is big enough, then there is a potential for a generic formulation to enter into the market. So what exactly is generic formulation? Generic formulation is a formulation which is developed exactly similar to innovator, exactly similar in terms of dosage form, in terms of route of administration. It is the exactly similar dosage form, and it matches all the pharmacokinetic properties of the innovator. So what do we do in generic? Basically we match the innovator. Match the innovator product. So in generic industry, we match the innovator product. Now, depending upon the type of market, we develop a generic product differently, but the basic mode of development remains the same in all market, whether it is a US market, Europe market, or UK market, or a China's market, or Brazil market. The basic principle of formulation development will remain the same, but as per the guidelines, some things will differ. Some extra work has to be done, or some work need not be done depending upon the market requirement. So to begin with, currently in India, the major work being done is for the US market. Generic industry, when we are working, it is major of the work is for the US market. And as I told you yesterday, what is a US market? Type of filing, it is called as ANDA. So what is this ANDA? ANDA is nothing but abbreviated new drug application. So the word abbreviate, I think I have again switched on to English, and as promised, I think I am supposed to use local language. So I will try to use both the languages to explain. So ये वर्ड जो है एब्रीवेटेड इटसेल्फ ये है कि ये एब्रीवेट मतलब शॉर्ट करना, शॉर्ट. सो इट इज अ शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट इनटू शॉर्ट टर्म. सो एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन आप जब भी कोई जेनेरिक बनाते हैं, एंड आफ्टर मेकिंग दैट जेनेरिक, व्हेनेवर यू पुट इट इनटू द मार्केट, इट इज called as a abbreviated new drug application. And there are very different type of application which comes which are possible when you file a product with US FDA. So basically ANDA is nothing but whatever product we are filing in the US market. So as I told you, generic FND, in generic FND we match with the innovator.
So what exactly do we match? So suppose now example, I will give you one example of griseofulvin tablet. So griseofulvin tablet, this innovator is available under the name of griseofulvin in US market. So what innovator has done? Innovator has made a IR tablet of griseofulvin, and that product is a very common product in the US market. It is going on very commonly. So what we do as a generic? We do what we do. So as I told you, this griseofulvin is a NCE for the innovator, and they have done a lot of clinical trials, animal trials, human trials, patient trials, toxicity study, impurity profile and all, which takes usually almost 15 to 20 years. And after the successful filing of the product, the FDA will evaluate it, US FDA, and they will grant them the NCE. Once they give the NCE and they come into the market, we can make a generic version. But again, I will tell you further in the further lecture series, not all the products we can go into generic because of patent issue. This I will discuss in the further series. As of now, griseofulvin is the NCE, it is in the market, and it is in the market as a IR tablet. And being a generic company, if we are planning to file a generic version, we have to make griseofulvin tablet सिमिलर टू griseofulvin tablet. तो इसमें क्या होगा, जो भी इनोवेटर होगा griseofulvin, आप इसको कैरेक्टराइज करोगे, इसका रिलीज प्रोफाइल देखोगे, इसका रिलीज प्रोफाइल देखकर आप इसको पूरा कैरेक्टराइजेशन करोगे और इसके सिमिलर टैबलेट पूरा बनाओगे. तो आप सिमिलर टैबलेट कैसे बनाओगे आप, क्योंकि ये आयर प्रोडक्ट है तो आप आयर बनाओगे, ये टैबलेट है तो आप टैबलेट बनाओगे. ये कैसा रिलीज होता है, ये हो सकता है कि ये काफी पुराना मॉलिक्यूल है, आई थिंक शायद ये 60 मिनट्स में कुछ 80% की होता है. griseofulvin इज ए वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल, तो ये 80% रिलीज होता है. तो आपको 80% रिलीज पूरा प्रोफाइल में मैच करना है डिसोल्यूशन में. एंड आई नो आपको डिसोल्यूशन तो again I think something I am going into too much basic, being pharma student, डिसोल्यूशन का आपको आइडिया होगा. फिर भी जब आएगा डिसोल्यूशन मीडिया आइडेंटिफिकेशन एंड ऑल, आई विल एक्सप्लेन टू यू. एज ऑफ नाउ हम griseofulvin को पूरा एज इट इज उसके फार्माकोकाइनेटिक्स मैच कर रहे हैं. तो फार्माकोकाइनेटिक्स आप कैसे मैच करोगे, आप पूरा पहले तो इन विट्रो इसको मैच करोगे, आपका फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट करोगे. पहले आपने जैसे इनोवेटर को कैरेक्टराइज कर लिया, उसका एसे देख लिया, आरएस प्रोफाइल देख लिया, डिसोल्यूशन देख लिया, डीटी पैटर्न देख लिया. आप फिर आपका फॉर्मुलेशन उस हिसाब से बनाओगे. आप ट्रायल्स लोगे, ट्रायल्स आप लेते 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 आप कोशिश करोगे हर बैच को मॉडिफाई करके, ये करके डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट क्रिएट करके एक इनोवेटर जैसा पूरा सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वाला आप एक डोसेज फॉर्म बना दोगे टैबलेट, जो कि आयर डोसेज फॉर्म हो गया. तो जब आप ये बना डालोगे तो आपका फाइनली पर्पस क्या है इसका बनाने के पीछे. तो द पर्पस बिहाइंड मेकिंग दिस इज ए बायो इक्विवेलेंट प्रोडक्ट. तो जैसे इनोवेटर है griseofulvin, वो आपके ब्लड में जाता है, ब्लड में जाके ब्लड से एब्जॉर्ब होकर वो डिजायर्ड एक्शन देता है. तो वो कितनी देर में ब्लड में पहुंचता है, कितना पहुंचता है, कैसे होता है. तो जो भी इनोवेटर जिस तरीके का बिहेव करता है ह्यूमन बॉडी में, सिमिलरली आपका प्रोडक्ट भी बिहेव करना चाहिए. तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप पहले इसको पूरा इनविट्रो टेस्टिंग करोगे फुल डिटेल में. इनविट्रो टेस्टिंग आपकी जैसी अच्छी हो गई है और आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया, तो आप उसके ऊपर में बायो स्टडी करोगे. अब बायो स्टडी किस टाइप के रहते, क्या रहते हैं, अगेन हम आगे जाके देखेंगे. अभी तो मैं आपको जेनेरिक फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट बता रहा हूँ. तो आप इसको डिसोल्यूशन एंड ऑल एवरीथिंग मैच करोगे, आरएस कंट्रोल में रखोगे, स्टेबिलिटी अच्छे से आए 3 मंथ्स, ये देखकर आप उसको डोज करोगे. वॉलंटियर्स को डोज करोगे, वॉलंटियर्स में आपका प्रोडक्ट डोज होगा और इनोवेटर भी प्रोडक्ट भी डोज होगा. और दोनों प्रोडक्ट डोज होने के बाद में दोनों की बायोइक्विवेलेंसी होगी, दोनों का प्लाज्मा से वॉलंटियर्स का सैंपल निकाला जाएगा, उसमें टेस्टिंग होगी
और जब एक बार टेस्टिंग हो जाएंगी तो टेस्टिंग से फिर डिटरमाइन करेंगे कि बायोइक्विवेलेंट है या नहीं है। तो प्रोडक्ट को बायोइक्विवेलेंट होने के लिए, आपके टेस्ट प्रोडक्ट को बायोइक्विवेलेंट होने के लिए रिक्वायरमेंट ये होता है कि आपका सी मैक्स, एयूसी और ये सभी का कॉन्फिडेंस इंटरवल 80 से 125 के बीच में आए। अब आपको लग रहा होगा कि सी मैक्स क्या है, एयूसी क्या है, ये क्या है। तो सी मैक्स इट इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो रीच होता है। एयूसी इज द एरिया अंडर कर्व विच इज प्लॉटेड बाय सी मैक्स अगेंस्ट टाइम। तो ये होता है। ये अगेन बायो वाले पार्ट में आएंगे, टाइप ऑफ बायो स्टडीज जब देखेंगे तो मैं वहां आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एज ऑफ नाउ आपका प्रोडक्ट बायोइक्विवेलेंट होने के लिए आपने इनोवेटर का प्लाज्मा सैंपलिंग कर लिया, आपका प्लाज्मा सैंपलिंग कर लिया, उसका टेस्टिंग किया HPLC पे या जो भी आपका मेथड डेवलप हुआ उस पर टेस्टिंग किया। वो टेस्टिंग होने के बाद में आप उसको स्टैटिस्टिकली इवेल्युएट करें। बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल रहते हैं। स्टैटिस्टिकल टूल होने के बाद में आपको जो CMAX का और AUC का कॉन्फिडेंस इंटरवल है 80 से 125 चाहिए। ये 80 से 125 आ गया मतलब बायोइक्विवेलेंट है। मतलब कि इनोवेटर जिस हिसाब से ब्लड में रिलीज कर रहा है उसी सिमिलरली आप भी रिलीज कर रहे हो, तो ये अज्यूम किया जाता है क्योंकि आपका भी रिलीज सिमिलर है एज दैट ऑफ इनोवेटर, तो आपका प्रोडक्ट बायोइक्विवेलेंट है। तो कभी भी आप कोई भी जेनेरिक प्रोडक्ट करते हो तो जेनेरिक प्रोडक्ट का फाइनल एम ये होता है कि आपका प्रोडक्ट बायोइक्विवेलेंट होना चाहिए। बायोइक्विवेलेंट टू इनोवेटर। तो बायोइक्विवेलेंट कैसा होगा, आप डेवलप करोगे उसको। जब आप डेवलप करोगे और बायोइक्विवेलेंट करोगे तो उसका ये मतलब है कि आपने एक जेनेरिक फॉर्मुलेशन डेवलप किया इनोवेटर के अगेंस्ट में, और आपका सक्सेसफुल बायो आपका डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि आपका प्रोडक्ट बायोइक्विवेलेंट है। एंड देन आप प्रोडक्ट को फाइल करोगे US FDA से, और US FDA फिर इवेल्युएट करेगा। और इसके अलावा फिर बहुत सारे गाइडलाइंस और रोल प्ले करेंगे जो कि मैं आगे आगे आपको डिस्कशन में बताता जाऊंगा। तो ये सब जब गाइडलाइंस मिक्स होके और गाइडलाइन इवेल्युएट होंगे तो फिर आपको इन US FDA फाइल्ड प्रोडक्ट को आपको एक जेनेरिक इक्विवेलेंट है बोलकर आपको ग्रांट करेगा। आपको बेसिकली US FDA ANDA ग्रांट करेगा और उस बेसिस में आप आपका फॉर्मुलेशन मार्केट में ले जा सकते हो। तो क्यों कर रहे हैं जेनेरिक फॉर्मुलेशन, हम NCE क्यों नहीं कर रहे? तो ये डिफरेंस है। तो जैसे मैंने बताया आपको एब्रीवेटेड, तो एब्रीवेटेड इज शॉर्ट। तो आप अब ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन पैसे बनाने के लिए है। और आप अगर NCE स्टडी करते बैठोगे तो आप 20 साल तो मार्केट में आने के लिए लगोगे, एक चीज। सेकेंड चीज, एक कोई कंपनी अगर कोई इनोवेटर बना रही है और वो लोग US में सप्लाई कर रहे हो, तो अगेन एक कंपनी तो पूरा मार्केट कब तक ये करेगा, उसको और भी कॉम्पिटिटर्स होने चाहिए। और बेसिकली जितना वो मतलब सिंगल जब तक रहेगा तब तक उस प्रोडक्ट का ये हाई रहेगा, और जैसे जैसे जेनेरिक एंटर करेंगे तो ये रहेगा। और बेसिकली आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, आपको ये बेनिफिट हो रहा है आपका प्रोडक्ट 20 ईयर्स में डेवलप होने के बजाय 2 to 3 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म, 2 to 3 ईयर्स में आपका प्रोडक्ट डेवलप होता है। तो अगर आपका प्रोडक्ट 2 to 3 ईयर्स में डेवलप होता है तो यू गेट ANDA, और फिर आप जब मार्केट में जाओगे तो आप एक इनोवेटर का शेयर आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन इट इज नॉट दैट इजी। हम जब देखेंगे तो ये देखेंगे कि इनोवेटर के पास में बहुत सारे तरीके होते हैं, पेटेंट्स एंड ऑल आपको रोकने के लिए होते हैं। ये पेटेंट्स वो सब कैसे होते हैं, पेटेंट बाईपास कैसे होता है, कौन से उसमें पेटेंट बाईपास होगा, कहाँ नहीं होगा, ये सब भी हम लोग आगे की सीरीज में देखेंगे। एज ऑफ नाउ के लिए जेनेरिक फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। तो बेसिकली जेनेरिक फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट मैंने जैसे बताया आपको, US यूरोप में या जहां पर भी कोई मॉलिक्यूल अवेलेबल है जो इनोवेटर ने अवेलेबल करके मार्केट में आया है, उसका आप जेनेरिक इक्विवेलेंट बनाए हो, बायोइक्विवेलेंट प्रोडक्ट बना रहे हो। तो जब बायोइक्विवेलेंट प्रोडक्ट आपका बनता है तो आपको ANDA मिलता है, फिर आप मार्केट में जाते हो। तो आप बायोइक्विवेलेंट प्रोडक्ट कैसा बनाते हैं, ये पूरा फॉर्मुलेशन सो बायोइक्विवेलेंट प्रोडक्ट आप कैसे बनाते हो, ये पूरा फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट का काम होता है। और इसके साथ में आपको बहुत सारे सपोर्टिंग डिपार्टमेंट जितने मैं बताया सब मिलके आपको हेल्प करते हैं एक जेनेरिक प्रोडक्ट बनाने में। तो जो भी जेनेरिक प्रोडक्ट बनता है तो आप बायोइक्विवेलेंट कैसे करते हैं, इन विट्रो उसको कैसे इवेल्युएट करते हैं, प्रोडक्ट को डिजाइन कैसे करते हैं, डोसेज फॉर्म कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब चीजें जो है
ये डिटेल में ये जो होता है F&D का काम होता है, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट का। तो इस तरीके से आप एक जेनेरिक प्रोडक्ट बनाते हो। तो ये तो एकदम बहुत ही ब्रॉड सेंस में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द वर्क ऑफ जेनेरिक इन इंडस्ट्री। सो बेसिकली जेनेरिक फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट ऑफ अ बायोइक्विवेलेंट प्रोडक्ट टू द इनोवेटर उस पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म में। अब डोसेज फॉर्म में तो आप कितने डोसेज फॉर्म्स आपने जो भी आपके थीसिस में इसमें बनाए होंगे, तो उस पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म्स को लेके वहां पर वो इजी था, लेकिन यहाँ पर ये गाइडलाइन है, आपको मैच करना है, एक टारगेट दिया है, उस टारगेट को आप कैसे मैच करोगे इसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। तो दैट इज व्हाट वी डू इन जेनेरिक फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। तो अब जेनेरिक फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, अभी ये बोलने में तो बहुत ही ऐसा सिंपल लग रहा होगा कि बस कॉपी कर लो, बना डालो, बट देयर आर मेनी थिंग्स जो कि जाते हैं इसमें प्रोडक्ट बनाने में। टेक लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड लॉट मनी ऑफ थिंग्स, क्योंकि जब इनोवेटर अवेलेबल है तो कुछ ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है। इट डजंट मीन कि आपने एब्रीवेटेड न्यू ड्रग कर लिया, एक शॉर्ट में ये किया, तो ऐसा नहीं है कि आपको स्टडीज ये नहीं है। कोई प्रोडक्ट को बायोइक्विवेलेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट चीज होती है, और वो आप बायोइक्विवेलेंट कैसे करते हो, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनोवेटर प्रोडक्ट एंड पीके पैरामीटर्स एंड ऑल। और ये जैसे जैसे आगे आए जाएंगे तो हम देखेंगे। तो बेसिकली फिर अगेन जैसे बार बार मैं बोल रहा हूँ, जेनेरिक इंडस्ट्री इंडिया में 80 to 90% काम आज की तारीख में जो भी हो रहा है वो जेनेरिक होता है फॉर यूएस यूरोप मार्केट मेजरली। उसके अलावा अदर मार्केट्स एक फेयर शेयर होता है डोमेस्टिक में भी, वो भी हम देखेंगे। तो जब आप जेनेरिक में काम कर रहे हो तो आप इस तरीके से करते हो। तो ये तो मैंने आपको एक आईआर प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया। फिर आप सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट रहेंगे तो वो कैसे बनाएंगे, वो बायोइक्विवेलेंट कैसे होगा। आईआर प्रोडक्ट भी है तो नॉट इजी थिंग। जैसे अगर ये ग्रेसिव फिल्मिंग का ही आप ले लो तो लो सॉल्युबल ड्रग है, और इनोवेटर जो है इसने इसका कुछ सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट करके टैबलेट डोसेज फॉर्म बनाया। तो आप उस डोसेज फॉर्म को कैसे मैच करोगे, आप कैसे बायोइक्विवेलेंट करोगे, कैसे मीडियाज आइडेंटिफाई करोगे, दिस इज ऑल अबाउट अ जेनेरिक फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया कि फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट एनी इंडस्ट्री इन इंडिया जेनेरिक करते हैं 80%। तो जेनेरिक करते हैं तो बायोइक्विवेलेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, बायोइक्विवेलेंट के लिए ट्रायल्स एंड ऑल होते हैं। तो अब ये कैसे कैसे ट्रायल्स होंगे, क्या होगा, क्या गाइडलाइन होंगी, कहाँ से ये होगा, मॉलिक्यूल कैसे सेलेक्ट होता है, मॉलिक्यूल सेलेक्ट होने के बाद में पेटेंट्स कैसे इवेल्युएट होते हैं, पेटेंट्स कैसे बाईपास होते हैं, फिर आप ट्रायल्स कैसे कंडक्ट करते हैं, ट्रायल से आप आगे कैसे बढ़ते हैं, फॉर्मुलेशन आप कैसे डेवलप करते हैं, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट होने के बाद में आपको क्या हर्डल्स आते हैं, फिर उस हर्डल्स आने के बाद में आप कहाँ उस हर्डल्स को ओवरकम कैसे करते हैं, फिर आपको अगर बायो में जो प्रॉब्लम आता तो आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं, आप अगर पेटेंट को बाईपास कर रहे हो तो उसको कैसे बाईपास करते हो। ये सब चीजें एक फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट टीम का काम होता है। ये सब डिस्कशंस में जैसे जैसे अब आगे शुरू करूंगा तो ये हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो मोस्टली होपफुली आई थिंक अभी तो फिलहाल इतना क्लियर है कि जेनेरिक फॉर्मुलेशन में हम कैसे करते हैं। अब मैं कल से शुरुआत करूंगा कि हम प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगेन प्रोडक्ट उतना आर&डी का काम नहीं होता है, बट कुछ चीजें होते हैं जो आर&डी के हिसाब से इम्पोर्टेंट होते हैं F&D के हिसाब से। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन में F&D क्या रोल प्ले करता है, कैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट होता है। यूजुअली प्रोडक्ट सेलेक्ट करती है मार्केटिंग टीम, लेकिन उसमें F&D का क्या रोल होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और जैसे जैसे ये फॉर्मुलेशन का रोल जैसे हो जाएगा, F&D का रोल हो जाएगा, तो पहले हम कल फर्स्ट उसमें देखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट होता है। फिर प्रोडक्ट सेलेक्ट होने के बाद में जब आर&डी में उसका काम चालू होता है तो वो काम कैसे किया जाता है, हाउ डू वी वर्क, हाउ डू वी प्लान एक्टिविटीज, ट्रायल्स कैसे होंगे, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आपको कौन सी गाइडलाइन यूज करना होगी, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। तो आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव स्पोकन। अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो यू कैन पुट इट इन कमेंट्स। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव द लेक्चर्स बेस्ड ऑन योर कमेंट्स। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी बताइए, नहीं लग रहा है तो भी बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए ताकि वो लोग देख सके और उनके लिए ये यूटिलाइजेशन हो सके इस एक्टिविटी का। और एज लॉन्ग एज स्टूडेंट्स आर लर्निंग, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई एक स्टूडेंट भी ये सीरीज देख के कुछ सीख रहा है
तो आई प्रॉमिस दैट आई विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग टिल वॉट एवर टाइम इट इज पॉसिबल करने के लिए, और आई विल नॉट बैकआउट। मेरे को जितना अंडरस्टैंडिंग है या जितना मेरी समझदारी से मैं जो समझा सकता हूँ वो मैं श्योर शॉर्ट आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सो रिक्वेस्ट है आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करिए और कमेंट्स करिए। कमेंट्स में आपके एक्सपेक्टेशन बताइए, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो बताइए, कुछ टॉपिक आपको इलेबोरेट करके डिस्कशन करना है तो वो बताइए। And all sort of comments, criticism is welcome. So let us see. And I think today I have uploaded the 3 videos जो कि मैंने पिछले पास्ट वीक में बनाया था, और अब यहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि डेली में एटलीस्ट एक वीडियो लेकर बताऊँ। और अगेन इसको ये सब जो चीज़ें हैं आई थिंक ये उतना शायद आपको कोई बुक्स में इसमें भी ना मिले, तो आप इसको ध्यान से सुनिए। इस पे से आपको नोट्स बनाने हैं तो बनवा लीजिए, और मैं इसको आगे जाके और इलेबोरेट आपको बताऊंगा। एंड वी विल हैव अ वेरी गुड जर्नी होपफुली। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी लर्निंग विथ मी, and thank you for coming here and listening to me, and I hope that I am able to create some difference. So thank you and good night. I think it's already 1:20 a.m. at night, so I think I have to also go to bed now. So I thought that I should complete at least 1 lecture daily, so यही टाइम पर मैं डालूंगा। So देखते रहिए, जुड़े रहिए, और let's see how this goes up. Okay, good night, thank you.